صدیقہ آج ہمارے سر میں درد ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی شریک حیات ہے, صدیق اکبر کی چہیتی بیٹی ہے. سرکار فرماتے عائشہ سر میں درد ہو رہا ہے, ہلکا سا بخار ہے. عزیزان گرامی حضرت عائشہ بولی یا رسول اللہ میرے بھی سر میں درد ہے, ہلکا سا بخار ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درد ٹھیک ہو گیا, مگر نبی کا درد سر کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. نبی نے 7 کنویں کا پانی منگوایا, اس میں غسل کیا, تھوڑی دیر کے لیے آرام ملا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کا درد بڑھ گیا, بخار بھی بڑھ گیا. پھر آپ نے 7 کنویں کا پانی منگوایا, پھر اس میں غسل کیا. عزیزان گرامی تھوڑی دیر کے لیے آرام ملا, لیکن پھر بخار بڑھ گیا. عزیزان گرامی آپ نے حضرت بلال کو بلایا, فرماتے ہیں بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, یہ کہہ دو تم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے, یاد فرمایا ہے. اور اے بلال ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دینا کہ ہو سکتا ہے آج پیارے نبی سے ہم اور آپ کی آخری ملاقات ہو. جب حضرت بلال نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. بلال یا رسول اللہ اس اعلان کو کیسے کروں گا؟ بلال کی آنکھوں میں آنسو, مگر نبی کا حکم تھا, گئے اعلان کرنے, مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا. اے لوگوں سب کو سرکار بلا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آج یہ آخری ملاقات ہو. آن کی آن میں دیکھا زبردست بھیڑ ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, سارے کے سارے حاضر ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے اس لیے یاد کیا ہے, اگر آج میرے اوپر کسی کا حق آ رہا ہو تو وہ آ کر کے مجھ سے لے لے, اگر میرے اوپر کسی کوئی امانت ہو تو وہ آ کر کے اپنی امانت لے لے, کوئی میرے اوپر بدلہ آ رہا ہو آ کر کے مجھ سے لے لے, اور میرا جس کے اوپر کچھ آ رہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا. پتہ یہ چلا یہ معاف کرنا پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں تم جو بھی جائز کام کرو میری سنت کے مطابق کرو, تاکہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو, تمہارے پیارے آقا کی پیاری سنت بھی ادا ہو. بے شک بے شک. سرکار نے کئی مرتبہ فرمایا میرے اوپر کسی کا کوئی حق آ رہا ہو تو آ کر کے لے لے, اور میرا جس کے اوپر آ رہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا. جب آپ نے کئی مرتبہ فرمایا عزیزان گرامی تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا حق آ رہا ہے آپ کے اوپر. پیارے آقا نے فرمایا عکاشہ تمہارا کون سا حق آ رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں وقت تھا فلاں دن تھا, میری پیٹھ پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے کوڑا لگا تھا, یا رسول اللہ میں آج اس کوڑے کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. نبی فرماتے عکاشہ بالکل صحیح ہے, ہمارے ہاتھوں سے آپ کی پیٹھ پر کوڑا لگا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سلمان فارسی جاؤ ہماری بیٹی کے گھر جاؤ اور وہی کوڑا لے کر کے آؤ, ہماری بیٹی سے کہنا اے فاطمہ اللہ کے رسول نے وہ کوڑا منگوایا ہے. حضرت سلمان فارسی گئے, جیسے ہی جا کر کے کوڑے کی بات رکھی فاطمہ نے پوچھا کس لیے ابا حضور نے کوڑا یاد کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے بتایا, فاطمہ نے کوڑا تو نکال کر کے دے دیا. حضرت سلمان فارسی چلے آتے ہیں, لیکن دیکھا حسنین کریمین وہیں پر مصلی بچھائے سو رہے ہیں, بچپنا ہے امام حسن حسین کا. فاطمہ الزہرا نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا, جگایا, کہا جاؤ بیٹا
फरमाया है, इसलिए कि हजरत उकाशा अपना बदला लेने के लिए आए हैं। मेरे बेटों सुन लो, जितने कौड़े खाना है तुमको अपनी कमर पर खाना है, तुम्हारे नाना जान की पीठ पर एक कौड़ा न लगने पाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हसनैन करीमैन का बचपन है, जा रहे हैं रोते हुए, आंखों को मसलते हुए, देखा जबरदस्त भीड़ है, मजमे को चीरते फाड़ते अंदर पहुंचे तो देखा तो हजरत उकाशा के हाथों में कौड़ा है, इधर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू है, हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू है, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं उकाशा जरा मेरा थोड़ी सी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर लो, तुमको जितने कौड़े मारना है मेरी पीठ पर मारो, मगर नबी की पीठ पर एक कौड़ा न लगने पाए। पैगंबर आजम फरमाते हैं उमर पीछे हट जाओ, सिद्दीक अकबर पीछे हट जाओ, बेटा हसनैन करीमैन पीछे हट जाओ, उकाशा को आने दो। हजरत उकाशा आगे आए, नबी ने फरमाया उकाशा तुम्हें इजाजत है। हजरत उकाशा कहते या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरी पीठ पर आपके मुबारक हाथों से कौड़ा लगा था, मेरी पीठ बरहना थी, मेरी पीठ पर कपड़ा नहीं था, कुर्ता नहीं था, या रसूल अल्लाह अगर बदला होगा तो उसी हाल में होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने कुर्ते के दामन को उठाने के लिए अपने हाथों को दराज किया था, लगता था कहीं कयामत न नाजिल हो जाए। सहाबाए किराम की चीखें निकल पड़ी, चारों तरफ से शोर बर्पा हो गया, लगता था कहीं कयामत सुगरा न नाजिल हो जाए। नबी फरमाते हैं सब हट जाओ। हजरत उकाशा आगे आए, जैसे ही नबी ने कुर्ता शरीफ ऊपर को किया, अजीज़ाने गिरामी हजरत उकाशा ने कौड़ा दूर को रख दिया और सरकार को अपने दोनों हाथों का कुलावा बना करके अपने कुलावे में ले लिया और लेने के बाद में रोने लगे, मोहरे नबुव्वत को चूम लिया और कहा था या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था। आका मैंने सुना था कि जिसका जिस्म नबी के जिस्म से मस हो जाता है उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाया करती है। या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो। हजरत उकाशा रोने लगे, मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया, नबी ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा जिसको दुनिया में ही जन्नती देखना हो वो मेरे उकाशा का दीदार। जरा जोर से बोलो नबी ने तबस्सुम फरमाया। और जानते हो जब जब नबी तबस्सुम फरमाया करते तो आपकी चहीती शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या बोलती थी, क्या कहती थी, जरा आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। जब जब नबी मुस्कुराते थे तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती। मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, इन औरतों से कहूंगा कि ये भी अपने शौहरों को देख करके मुस्कुराना सीखें। नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना
फरमाते मेरे सहाबा जिसको दुनिया में ही जन्नती देखना हो वो मेरे उकाशा का दीदार कर ले। नींद तो नहीं आ रही है ना? थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं। बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा माशाल्लाह, मोहब्बत से। अच्छा माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आपने हक अदा कर दिया। और सही बात यह है कि उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छी समाते हैं। आपकी बस्ती में आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बिलखुसूस अपने इस मकान पर आने के बाद। हमारे कारी यूसुफ कमाल साहब क़िबला की ज़र्रा नवाजी, ये मोहब्बत की इन्होंने इस मौके पर अपनी बहन के चहल्लुम की फातहा के मौके पर इस नाचीज़ को याद किया। आइए मैं दो शेर पढ़ दूँ, वो हज़रत के ही लिखे हुए हैं और इतना उम्दा लिखते हैं, ये इतना उम्दा लिखते हैं कि मैं सही बात यह है कि अब वो नेट पे कई तकरीरों में वो कलाम आ चुका है, तो मैं अब कुछ नए शेरों से शुरुआत करता हूँ क्योंकि आजकल नेट का ज़माना चल गया है ना। तो अब कुछ नई बातें तकरीर में भी देनी पड़ती हैं, अशार भी नए नए देने पड़ते हैं क्योंकि मुफ्ती जावेद आलम साहब है ना। तो वो कलाम जिस वक्त मैं अब से 4-6 साल पहले, 10-5 साल पहले पढ़ता था, एक दफ़ा मैंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के एक प्रोग्राम में मछलीपट्टनम में गालिबन 50-60 हज़ार का मजमा था, उसमें पढ़ा था तो एक ही शेर 5 मरतबा पढ़वाया। माशाअल्लाह। शेर ही ऐसा जब पढ़ूंगा तो आप भी सुनेंगे और मचल जाएंगे। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि दमे आखिर खुदा रहा बस, दमे आखिर खुदा रहा बस, यही पैगाम लिख देना, दमे आखिर खुदा रहा बस, दमे आखिर खुदा रहा बस, यही पैगाम लिख देना, यही पैगाम लिख देना, रसूले पाक का मेरे कफन पर नाम लिख देना, रसूले पाक का मेरे हमारे भाई साहब कह के गए हैं, कारी साहब शेर को फिर से पढ़िएगा कि दमे आखिर खुदा रा बस, पैगाम लिख देना, यही पैगाम लिख देना, रसूले पाक का मेरे कफन पर नाम लिख देना, रसूले पाक का मेरे। और हजरत शेर समाप्त फरमाए कि दरे सर कार को जिसने लबों से अपने चूमा हो। देखिए मुझे नहीं, अब मुझे तो आप दुआएं देंगे ही, मुझे अब बाद में देना, पहले यूसुफ कमाल साहब को दीजिएगा। इतना अच्छा शेर लिखा इन्हें भी दुआओं से नवाज दिया, नवाजना आप लोग। मैं यार छोड़, मुझे भी मत देना है ना, मुझे भी दुआ दीजिएगा इंशाल्लाह है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है तो देंगे आप लोग दुआ। अच्छा इधर वालों की मर्जी है दुआ देने की, आप लोगों का ख्याल नहीं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कि दरे सरकार को जिसने लबों से अपने चूमा हो, लबों से अपने चूमा हो, ये उसकी जिंदगी का सब से अच्छा काम लिख देना, रसूले पाक का मेरे कफन पर नाम लिख देना। अच्छा मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिसको हिंदुस्तान की अक्सर जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में जब पढ़ा तो अल्लाह के फजल व करम से
बुजुर्गों ने भी दुआएं दी, जवानों ने भी दुआएं दी, अपनों ने भी, बेगानों ने भी, सब ने दुआएं दी। वो शेर में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ कि कभी भूले से भी नजदी तुम्हारे घर ना आ जाए। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोलिए, करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कभी भूले से भी नजदी तुम्हारे घर ना आ जाए, तुम्हारे घर ना आ जाए, तो तुम दरवाजे पर अहमद रजा का नाम लिख देना, तो तुम जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल इसाले सवाब। तो तुम दरवाजे पर अख्तर रजा का नाम लिख देना, रसूले पाक का मेरे। एक थोड़ी सी बात आई थी बीच में कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जब नबी को मुस्कुराते देखती थी तो क्या कहती थी? मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है? अब जरा इसी जुमले पर थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ाएं। मैंने एक जुमला बोला था कि हमारी माएँ बहनें बेटियां कान खोल कर सुने, ये भी मौत की तैयारियों में से एक तैयारी है, वो इनके लिए भी जरूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी माँ बहनों से, बेटियों से कहूँगा, ये फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को अपनाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अदाओं को अपनाए। उनका उसूल क्या था, उनका तरीका क्या था? खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जब हजरत अली शेर खुदा घर में तशरीफ लाया करते थे तो फातिमा तो ज़हरा दो चार कदम बढ़ करके अली का इस्तेमाल किया करती और सलाम किया करती थी। पैगंबर आदम फरमाते हैं, दुनिया की कोई भी औरत जो फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को अपनाएगी उसका तरीका ये होगा, अगर किसी औरत का शौहर सुबह को घर से निकले, खून पसीने की कमाई करने, फावड़ा चलाने, रिक्शा चलाने, कस्सी चलाने, ट्रक चलाने, बस चलाने, मेहनत मजदूरी करने, और जैसे ही शाम को उसके शौहर के घर में आने का वक्त हो, नबी फरमाते उसके आने से पहले पहले वो अपने शौहर के इंतजार में बैठ जाए। अब बड़ी शिद्दत से इंतजार करे, मेरा सर का ताज आ रहा होगा, मेरा शौहर आ रहा होगा। नबी फरमाते हैं जैसे उसका शौहर घर में दाखिल हो, उसकी बीवी अपने शौहर को देखकर खड़ी हो जाए, मुस्कुरा करके सलाम कर ले। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब इनायत फरमाता है। एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमाता है। और जानते हो जब शौहर का दिल खुश हो जाता है, क्या इनायत कर दे ये उसकी बीवी ने सोचा भी नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा इसको भी हम लेकर के चले। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में एक दिन की बात है, हजरत अली शेर खुदा कहीं बाहर से तशरीफ लाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा की तबीयत अलील है, हल्का सा बुखार है, घर में 3 वक्त का फाका है, लेकिन जैसे ही अली दरवाजे पर आए, दरवाजे पर आने के बाद में आपने खासा, फातिमा समझ गई अली तशरीफ ले आए हैं, मेरे सरताज आ गए हैं, मेरे शौहर नामदार आ गए हैं। तारीख बताती है जैसे ही अली अंदर गए, फातिमा खड़ी हो गई, खड़े होकर के अपने शौहर का इस्तेमाल किया, मुस्कुरा करके सलाम किया। 3 वक्त का फाका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते हैं नेक औरत की ये
शौहर को मुस्कुरा करके सलाम कर ले, 2-4 कदम बढ़ करके इस्तेकबाल कर ले। मगर आजकल बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। जैसे ही शौहर आएगा, दिन भर का हारा थका बेचारा, एक से मैंने पूछ लिया था, भाई साहब नमाज तो पढ़ा करो, तो बोले यारो पढ़ो तो हूँ, जिस टाइम की हाथ लगे तो पढ़ो तो हूँ। तो मैंने कहा हाथ लगने को ये कोई भागी फिर रही है क्या? मौलाना हनीफ साहब यूं कह रहा कि जिस टाइम की हाथ लगे तो पढ़ूं तो क्या कोई भागी फिर रही है क्या? पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? अरे ये तो अपनी जगह अटल है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक बेशक है, ये कोई भाग थोड़ी रही है कि हाथ तो पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हो। हाँ तो मुझसे बोला ना कोशिश तो करता हूँ। मैंने कहा नहीं, कोशिश ही तो नहीं करते। नबी की अदाओं को अपनाओ और बहन बेटियों से कहो वो भी 5 वक्त नमाजी बने, नबी की अदाओं को अपनाएं। तो फातिमा तो ज़ारा खड़ी हो गई, सलाम किया, अली का दरिया रहमत जोश में आया। जैसे ही फातिमा ने मुस्कुराया, सलाम किया, अली बैठे, फरमाते हैं फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। बेशक बेशक। अब ये बताइए, आप ईमानदारी के साथ सोच करके, बहुत अच्छा सुनना है आप, आपकी बीवी आपको सलाम करेगी तो आपका दिल खुश होगा कि नहीं होगा? है? अच्छा मगर बीवी करेगी कब? सवाल पहला ये पैदा हुआ कि करेगी कब? जब तुमने सिखाया होगा, क्योंकि तुम्हें भी तो घर जाते हो तो सलाम करने की आदत नहीं। नबी फरमाते हैं घर जाओ तो अपने माँ बाप को सलाम करो, माँ बाप ना हो तो बीवी को सलाम करो। अच्छा बीवी के नाम से नहीं बोले आप लोग? मना है क्या बीवी को सलाम करना? है भाई, बीवी के नाम से क्यों नहीं बोले? मना है क्या? वो एक अलग बात है, तुम घर जाओगे बीवी को सलाम करोगे तो पहले दिन सलाम का जवाब नहीं मिलेगा। जानते हो क्या जवाब मिलेगा? कम बने करो जरा कम। क्या जुमला बोला ये जवाब मिलेगा मुफ्ती जावेद साहब, है ना? दूसरे दिन जाओगे फिर सलाम करोगे, जवाब फिर भी नहीं मिलेगा। फिर क्या जवाब मिलेगा जानते हो? इतरा कितने रहे अब 2 दिन से आम है तो सलामी करते हुए आम है। जब से हमीरपुर वालों की तकरीर सुनी है वो अब सलामी करते हुए आम है, पहले से तो ना करा कभी। मगर प्यारे तीसरे दिन तुम घर जाओगे, तुम्हें सलाम करने का मौका ना मिलेगा। बीवी सोचेगी शौहर हो करके मुझे सलाम कर रहा है। जैसे ही तुम घर में जाओगे इंशाअल्लाह बीवी तुम्हें सलाम कर लेगी। हमारे सरकार ने अपनी जाहिर 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम है कि हमने मुताला ही नहीं किया। यही तो सरकार ने बताया, घर जाओ तो माँ बाप को सलाम करो, माँ बाप ना हो बीवी को सलाम करो, बीवी ना हो खाली बच्चे हो उन्हीं को सलाम करो। एक सहाबियत करते हैं आका अगर घर कोई ना हो तब क्या करे? आका ने फरमाया तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह हम घर जाएंगे खाली घर होगा सलाम करेंगे, हमारे सलाम का जवाब कौन देगा? मेरे आका फरमाते हैं तुम घर जाओगे खाली घर को सलाम करोगे, मुझ मोहम्मद अरबी की रूह तुम्हारे सलाम का जवाब देगी। एक जिस्म हमारा है, इस जिस्म में सीना है। जरा जोर से बोलो। एक जिस्म हमारा है, इस जिस्म में सीना है, सीने में भी एक दिल है। अरे जिस दिल में मदीना है, सीने में भी एक दिल है, जिस दिल में मदीना है। अच्छा ये हमारे देख साहिबुल कादरी साहिब कबीला एक फरमाइश कर रहे हैं, मैं अभी पूरी करूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जरा तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो अली फरमाते हैं फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। तो मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, ये भी मांगने का तरीका सीखें, अपने शौहरों से मांगने का तरीका सीखें।
علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کہا کچھ ہم سے مانگ لو۔ تو فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج میں کیا مانگوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے آپ جیسا شوہر ہی عنایت فرما دیا تو اس سے بڑی دولت میرے لیے اور کون سی ہوگی؟ مانگنے کا انداز دیکھ، کیا مانگا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا شوہر ہی عنایت فرما دیا تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی میرے لیے؟ مگر علی کا دریائے کرم آج جوش پر فرماتے فاطمہ آج تک تم نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے آج ہم تم کو کچھ دیں گے، لیکن دیں گے وہی جو آپ ہم سے سوال کرو گی، جو مانگو گی۔ تو فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو آج ایک انار لا کر کے دے دیجئے۔ انار، واہ! آج کل اگر کسی عورت سے اس کا شوہر کہہ دے بیگم مانگ لو کیا مانگنا چاہتی ہو تو کہے گی کچھ نہ چاہیے جنت کی گھاس کا ایک سوٹ لا دو، کانوں میں پہننے کی سونے کی جھمکیاں لا دو، 12 تولے کی چینیں لا دو۔ یہ بیچارہ غریب آیا تھا دن بھر کھرپا ڈھکیل کے 300 روپے لے کر کے آیا تھا اور یہ سونے کی جھمکیاں مانگ رہی ہے۔ لے نبی فرماتے ہیں نیک عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچے کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نیک عورت کی پہچان۔ وہ فرماتے ہیں نبی نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچے کا مطالبہ نہ کرے، شوہر کی آمدنی کا خیال دیکھ کر خرچے کا مطالبہ کرے۔ فاطمہ تو زہرا انار مانگتی ہے، علی نکل پڑے انار کی تلاش میں۔ مختصر کرو وقت زیادہ ہو گیا، بمشکل ایک انار ملا، ابھی چند قدم چلے تھے کہ سامنے سے ساحل آ گیا۔ علی کو دیکھا تو خوشی میں پھولے نہ سمایا، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو آ کر کے سلام کیا، علی نے چہرہ پڑھ لیا، پوچھتے بھائی پریشان کیوں ہو؟ رونے لگا، کہنے لگا اے علی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل کشا بنایا ہے، میرے سامنے کو مشکل ہے، بیوی کی طبیعت علیل ہے، ڈاکٹروں نے انار بتایا ہے، حکیموں نے انار بتایا ہے، اگر انار مل جاتا بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ علی نے 1 سیکنڈ کی دیر نہ کی، وہ انار اس سائل کو دے دیا اور صرف انار ہی نہیں دیا بلکہ ساتھ میں دعا بھی دی۔ فرماتے ہیں لو بھائی اللہ تعالیٰ کا بھلا فرمائے، ارے کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود نہیں کھاتے۔ انار دے دیا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ہلکے ہلکے قدم سے چلنا شروع کیا، سوچتے چلے جا رہے علی گھر جاؤ گے جواب کیا دو گے؟ فاطمہ نے اپنی مرضی سے سوال نہیں کیا تھا، تم نے ضد کی تھی تب فاطمہ نے انار مانگا تھا، گھر جاؤ گے جواب کیا دو گے؟ یہی سوچتے چلے جا رہے ہیں، چلتے 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 گھر قریب آ گیا۔ گھر کے دروازے پر موٹے کپڑے کا پردہ پڑا ہے، کپڑے کے باہر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں علی فاطمہ نے اگر سوال کر لیا جواب کیا دو گے؟ مگر پیارے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اتنے موٹے پردے میں سے فاطمہ نے علی کو دیکھ لیا، یہ محبت تھی، اپنے سر کے تاج کو دیکھ لیا۔ فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج باہر کیوں کھڑے ہیں آپ، اندر تشریف لے آئیے۔ علی کہتے ہیں فاطمہ آؤں تو آؤں کیسے؟ فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج اندر تو تشریف لائیے۔ علی اندر گئے، لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ، ذاکر حمید پوری اب نبی کی نہیں نبی کی بیٹی کی بات کر رہا ہے۔ علی اپنا گزشتہ واقعہ بتانا چاہتے تھے، فاطمہ کہتی ہے میرے سر کے تاج جو آپ کے ساتھ گزری ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کہا فاطمہ طبیعت کیسی ہے؟ بولی بہت اچھی طبیعت ہے۔ کہا کب سے ٹھیک ہو گئی؟
फातिमा कहती है जिस वक्त से उस साइल की बीवी ने अनार खाना शुरू किया, अनार उसकी बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा, शिफा मुझे मिल रही थी। ऐ लोगों तुम नमाजें पढ़ो तो पहले दुआ अपने लिए नहीं, पहले अपने माँ बाप के लिए मांगो, अपने बीवी बच्चों के लिए मांगो, अपने बहन भाइयों के लिए मांगो, अपने पड़ोसियों के लिए मांगो, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगो। तुम दुआ उनके लिए मांगोगे बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, दुआ माँ बाप के लिए मांगोगे फायदा तुम्हें होगा। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज तबीयत बहुत अच्छी है। अजीज़ाने गिरामी, सरकार ने अपनी ज़ाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। खूब उछल उछल के नारे लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहाँ से। प्यारे गुजारिश करूंगा नमाजों की पाबंदी करो, बहन बेटियों से भी कहूंगा ये भी नमाजों की पाबंदी करें, और फिर नमाज पढ़ करके अपने शौहरों के लिए दुआ किया करें, अपने शौहरों की कमाई के लिए दुआ किया करें, अगर वो बाहर को जाए तो उनकी लंबी उम्र की दुआ किया करें, सफर से आसानी से जाने और आने की दुआ किया करें, इसलिए कि पैगंबर आज़म फरमाते हैं शौहर के हक में बीवी की दुआ कबूल होती है, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है, शागिर्द के हक में उस्ताद की दुआ कबूल होती है, मुक्तदियों के हक में इमाम की दुआ कबूल होती है, मुरीद के हक में पीर की दुआ कबूल होती है। बरादरे गिरामी, मेरे दिल के करीब, मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई कहिए या छोटे भाई कहिए, मेरे दिल के करीब है साइमुल कादरी साहिब क़िबला की फरमाइश का इशारा है, बस सिर्फ 2 शेर पढ़ दो और उसके बाद में फिर सलातो सलाम है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के गुंबद खज़रा इन आँखों में, इस कलाम को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा मिलक की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, और जबान हमारी कहती हो कि गुंबद खज़रा इन आँखों में काजल बन के रहता है, गुंबद खज़रा इन आँखों में, गुंबद खज़रा इन आँखों में अज काजल बन के रहता है, और उनका करम भी लम्हा लम्हा, उनका करम भी लम्हा लम्हा अजी बादल बन के रहता है, उनका करम भी लम्हा लम्हा। और बीलाओं से बेहतर है वो, दालाओं से अफजल है। मुफ्ती जावेद आलम साहब से तर्जुमा पूछिए, हजरत कहेंगे बीना कहते देखने वाले को, दाना कहते अक्लमंद को, जानने वाले को, मगर आशिक रसूल क्या कह रहा है कि बीलाओं से बेहतर है वो, दालाओं से अफजल है। कौन? अरे उनकी गली में जो दीवाला, उनकी गली में, उनकी गली में जो दीवाला अजी पागल बन के रहता है, उनका करम भी। और जल्दी से शेर सुने, और ऐसा शेर है अब जिसको अपनी माँ से मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह वो खामोश नहीं रहेगा। ये जाकिर हमीरपुरी जो बोल रहा है, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ ये मेरे रब का करम है, प्यारे हबीब का सदका और मेरी माँ की दुआएं हैं। शेर देखिए कि मुझ तक कोई गम आ जाए ऐसा कब हो सकता है। अंदाज देखो शायद, मुझ तक कोई
سر پہ ہمیشہ میری ماں کا سایہ، سر پہ ہمیشہ ماں کا سایہ، اجی آنچل بن کے